Okay, let us start. So we will quickly revise the topics which we have seen yesterday. So we have completed like the primary key and the foreign key. Now you'll know कि primary key foreign key का relationship कैसे set करते हैं and what is the purpose. So like every table will have its own primary key, not compulsion, but it is always good कि हर table में आप primary key डालो. When you create the table for the first time, there are multiple ways. Suppose आपने कोई column add करना रह गया है या आपको किसी column के आगे constraint add करना है. So you know constraint means null, not null, प्राइमरी की फॉरेन की, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं. सो अगर आपने टेबल बनाते वक्त नहीं ऐड किया, सो यू ऑलवेज हैव अ चांस टू यूज द कमांड ऑल्टर, ALTER. विद दिस कमांड आप जो चीजें वापस से आपको ऐड करनी है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, यू कैन ऑलवेज alter to existing table. ठीक है, तो alter हमने नहीं देखा है, but I'm just giving you an example. So with this we have seen primary key का importance, foreign key का importance. So whenever one key is referring from a parent table to a child table, आप child table में वो primary key को foreign key बोलोगे, so that you can make a relationship. And the purpose of adding primary key foreign key is just because we want to get the data from both the tables at the same time. Okay, after that we have seen like how can we work with a where clause. So where clause, as the name says, it is used to filter the records. आपके पास data बहुत सारा है, more than 1 lakh or maybe 2 lakhs. Now you don't want to see such a lot of data in your resultant sets. So आप क्या करते हो, where condition लगाते हो. So if you see here, where condition is very easy to write and remember. It is always like आपको किसी table में से कुछ छोटा piece of information को retrieve करना है. So that's what the syntax says here. Select star from table, that is the employee table, where employee ID is equal to 105. This can be employee ID, that means it can be a string value आप निकाल सकते हो, आप date related value निकाल सकते हो, आप और भी जो भी आपको डेटा टाइप है उसका रिलेशन वहां पे मेंशन करके आउटपुट में कैसा वैल्यू चाहिए, यू कैन यूज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योर वेयर क्लॉज. सो वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द डेटा फ्रॉम अ ह्यूज डेटा सेट, नॉट नेसेसरी हमेशा ह्यूज हो. सपोज अगर आपके 15-20 रिकॉर्ड्स भी हो, आपको सिर्फ किसी 2 आईडीज पे ही वर्क करना है, उसी का इंफॉर्मेशन चेक करना है, देन ऑल्सो यू कैन यूज अ वेयर क्लॉज. आफ्टर दैट विद वेयर क्लॉज वी हैव सीन मल्टीपल ऑपरेटर्स. Okay, so operators are nothing but the operators which we are using in a mathematical calculation, algebraic calculation. So they were equal to, greater than, not equal to, between, like operator, in operator. So that's all we have seen. Okay, और इनके साथ में हमने not in भी चेक किया था. Fine. So if there are any questions till here, let me know. Otherwise, we'll start with the new concept, that is your joins. तब तक देखो आपको कोई क्वेश्चन है किसी कंसेप्ट में. Okay, अच्छा ठीक है, no problem. Even if you have questions while doing assignments, because from today, after we cover the concepts of joins, I'll be adding some 2-3 assignments. So just make sure आपको assignments के ऊपर work करना start करते हो, because I'll also put the deadlines of completing those assignments. ठीक है, okay. Now the concept is joins. अब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप SQL सर्वर सीख रहे हो, तो आपको 40-50% बाकी डेटाबेस का भी टॉपिक कवर हो रहे हैं. सो सिमिलरली व्हेन वी हैव लर्न कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल क्रिएशन, टेबल में डेटाबेस क्रिएट करना, फिर वो टेबल में रोज कॉलम्स डालना, सो ये सारा बाकी डेटाबेस में भी है. दैट इज अ फंडामेंटल. सिमिलरली जॉइन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ऑल द डेटाबेस व्हिच वी हैव करंटली. नाउ व्हाट इज जॉइंस? So the meaning of joins is again the same. Basically, when you want to get the data from multiple tables, अब वो आपके tables 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. So in a case, whenever you want to retrieve the data from multiple tables, अब आपके multiple tables कैसे हो सकते हैं? You can have a customer table. So let's say if I put it as customer table, then you have the location table. After that, you have your sales table, and then maybe you have the profit table. So अब आपको क्या करना है, कस्टमर के रिलेटेड लोकेशन, then at the same time customer के related profit, like when you have new customers coming into your business, how much profit they have given us, are they a good type of a customer which will give you a business for a longer period of time. So ये सब चीजें आपको अंडरस्टैंड करना है, so that you can take better decisions. पूरा डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का पर्पस ही ये है दैट यू कैन सी द डेटा, एनालाइज द डेटा, एंड देन यू कैन मेक मीनिंगफुल डिसीजंस फ्रॉम दैट डेटा, सो दैट बिजनेस में पहले कुछ होने के फ्यूचर में कुछ आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़े, तो आप पहले ही डेटा को एनालाइज करके यू मेक श्योर लाइक दीज आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स व्हिच यू टेक, जिससे आपके बिजनेस में ज्यादा लॉस ना होगा, एंड यू ट्राई टू
look for better achievements. So that is how joins means whenever you want to get the data from multiple table in the same query. That is what is case when you will be using your joins. So this is one example. Now to create a join between two tables, again the condition remains same, that location table and customer table if you want to join, there has to be a common column. Okay, आप common key बोलो, common column बोलो, it is one and the same. So when you want to get the data from these two tables or these three tables, you need to have a common column. ठीक है? So the common column will help you to get the data between both the tables. अब जो common column होगा उसमें फिर से आपके पास null value नहीं होनी चाहिए. So I'll write the two basic rules here to make a connection between two tables or to make a join between two tables. You have to have a common column. So that is the common column you say. Or sometimes we can say common key, but then common column is like a better technical word. Common column. After that, the column which you're using to make a connection, that should not have null values. So no null values should be available, should be valid, you can say. Okay, so ये दो रूल अगर आपके क्लियर है तो आप उस कॉलम को एज अ primary connection column between two tables can be considered. Now what we will do, अभी हम लोग आज नए tables बनाते हैं, वो नए tables पे से हम लोग join सीखेंगे. ठीक है? So maybe we'll create two tables. So I'm writing it here. Two new tables. Two new tables will be created. Let's see कौन से table create कर सकते हैं. After we create the new table, we have to start applying the joins. Now we have the 4 joins which are evergreen. Okay, one is inner join, then second is your left join, third is your right join, and then finally you have a full outer join. ठीक है? So आपको ये 4 joins है जो हर database में आपको available रहेंगे. But apart from this 4 joins, there are few more joins which might not be available in all the databases, but they are also a part of join. But आपके जो पहले 4 है, inner, left, right and full, they are there with all the databases. Even when you go to reporting tools, so हमारे पूरे ये combo में Power BI है, तो Power BI में भी ये 4 joins आपको दिखाई देंगे. You also have Tableau, ClickView, जो the reporting tools में like one of the leading tools है. So with Power BI we also have ClickView, Tableau. So in that also you have these 4 joins. Now apart from these 4 joins, there are 2 more joins जो हम लोग देख सकते हैं. One is your natural join, okay. Then second is your self join, and after that you have a cross join. So these are some extra joins which I'm introducing. So these joins may or may not be available. So natural join हमारे पास SQL Server में available नहीं है, but we do have self join and cross join. Okay, अब इन joins का detail में हम लोग meaning समझते हैं. So inner join means what? So inner join is the default join. So default join का मतलब क्या होता है? जैसे suppose आपने join का syntax लिखा है. I'll tell you the syntax also. So if you write the join syntax और आपने उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि आपको कौन सा ज्वाइन लगाना है 2 टेबल्स के बीच में, 3 टेबल्स के बीच में, क्या वो लेफ्ट है, क्या वो राइट है, क्या वो इनर है. इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग द ज्वाइन टाइप, ओके, सो द डिफॉल्ट ज्वाइन विल बी टेकन एज इनर ज्वाइन. और इनकेस आपने अगर डिफाइन किया तो एनीवेज इनर ज्वाइन ही चलने वाला है. अगर आपने डिफाइन नहीं किया, आप जैसे इतना लिख रहे हो टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2, इफ दिस इज द सिंटैक्स यू आर राइटिंग, दैट मींस इनर ज्वाइन इज गोइंग टू टेक प्लेस for all the databases too. Okay, so इसमें भी work कैसे करेगा? When you work with 2 tables, so let's say this is my table number 1 and this is my table number 2. Okay, अब आपने इन दोनों के बीच में join condition apply किया. So inner join means what? It will always give you the common data. ये एक default join है. अगर आपने join condition नहीं mention किया दोनों table के बीच में, और साथ में इसका रिजल्ट क्या होगा? द रिजल्ट विल बी ओनली द कॉमन डेटा. अब दोनों टेबल्स में जो भी कॉमन डेटा है दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर इनर जॉइन. ठीक है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे, सो इट विल बी वेरी मच क्लियर. लेफ्ट जॉइन, अगेन दीज आर माय 2 टेबल्स. सो फर्स्ट टेबल आप जो इंट्रोड्यूस करते हो डेटाबेस में, किसी भी डेटाबेस में, तो पहले टेबल को हम लोग हमेशा लेफ्ट टेबल बोलते हैं. ठीक है, और सेकेंड टेबल को आप बोलोगे राइट टेबल. सो
फर्स्ट टाइम वेन एवर यू इंट्रोड्यूस एनी वन टेबल, किसी भी टेबल को तुम इंट्रोड्यूस करते हो, उस टेबल को हम टेबल वन तो बोलेंगे ही, बट एट द सेम टाइम बाय डिफॉल्ट द टेबल वन इज नोन एज लेफ्ट टेबल एंड द सेकेंड विल बी राइट टेबल। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करूंगी तो फिर से एक बार क्लियर करूंगी। नाउ लेफ्ट जॉइन मीन्स व्हाट, जब लेफ्ट जॉइन की बात होती है या राइट जॉइन की हम लोग बात करते हैं, सो लेफ्ट जॉइन मीन्स द लेफ्ट टेबल विल बी डोमिनेटिंग, तो ये आपका टेबल क्या रहेगा, डोमिनेटिंग रहेगा। नाउ इसका रिजल्ट कैसे होगा, अब ये दोनों टेबल्स में जो कॉमन है वो तो आपको रिजल्ट आएगा यहाँ पे, तो कॉमन फ्रॉम बोथ द डेटा, कॉमन फ्रॉम बोथ टेबल्स, कॉमन फ्रॉम बोथ टेबल्स, बट दोनों टेबल में से कॉमन डेटा आने के बाद में जो डेटा सिर्फ लेफ्ट टेबल में है वो भी आपके रिजल्टेंट का पार्ट रहेगा। ओके, सो लेट मी रिपीट दिस। अल्टीमेटली यू हैव टू टेबल, टेबल वन टेबल टू, जिसमें से टेबल वन इज लेफ्ट, टेबल टू इज राइट। अब आपको दोनों टेबल में लेफ्ट जॉइन निकाल के कुछ डेटा को चेक करना है। सो लेफ्ट जॉइन मींस अगेन हर जॉइन में मीनिंग इतना ही है कि आपका हमेशा कॉमन डेटा रिजल्ट में आने ही वाला है। So now when you apply the left join, you will have the common data coming from both the tables. First point, but since it is the left join, common data दोनों टेबल में से आने के बाद में लेफ्ट जॉइन का जितना भी बचा हुआ डेटा है वो भी रिजल्टेंट सेट में आएगा। सो कॉमन फ्रॉम बोथ टेबल्स, एट द सेम टाइम all the remaining data, all the remaining data from the left table। यहां तक क्लियर है, थ्योरी क्लियर हो रहा है आपको? पूछो, यहां तक कुछ क्वेश्चंस है तो। नो अदर्स, क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ना राइट टेबल मींस वापस से वो मेरा कंडीशन रिपीट होने वाला है। सो राइट टेबल मींस अगेन यू हैव कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ टेबल्स। आफ्टर दैट दोनों में से कॉमन डेटा जब बाहर आ जाएगा, आफ्टर दैट क्या होने वाला है, एंड ऑल द remaining data from the right table, this will be the part of your resultant set। ऐसे वो वर्क करेगा। Okay, so right means all the common data from both the tables, and after this you will have remaining data from the right table। ठीक है, now full outer join, as the name says full, it will not bother कि दोनों में common है, duplicate है, uncommon है, it will take all the data। So this will be entire data from both the table, entire data from both the tables। ठीक है, तो अभी हम इन चारों पे फोकस करते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा जॉइंट्स है। So once we understand the basic joints, then we'll go to the next joints one by one। Okay, now let's move to our databases once again। उसके पहले मैं फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ। Inner join means one of the default join, ठीक है, it is always giving you the common data from both the tables। इसके अलावा कुछ भी रिजल्ट सेट में नहीं आएगा आपके पास। Now we have left table, left table means again the common data from both the tables, and since it is left join, left table will be dominating, तो सारा left से जस्ट उसका अपोजिट राइट है, कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स। अब राइट जॉइन है, सो इट इज डोमिनेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, रिमेनिंग इंफॉर्मेशन जो कॉमन नहीं है दोनों टेबल में वो रिजल्ट में आएगा। एंड फुल आउटर जॉइन मींस एंटायर डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स। नाउ मेनी अ टाइम्स हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, लेफ्ट जॉइन तो इसका नाम है, इन फ्यू डेटाबेसेस वी कॉल देम एज लेफ्ट आउटर जॉइन। ओके, एंड समटाइम्स वी कॉल राइट एज राइट आउटर जॉइन, एंड फुल आउटर जॉइन तो है ही। सो बेसिकली वी कैन टेल देम आउटर जॉइन के तीन वेरिएशंस है। आउटर जॉइन ये कुछ कुछ डेटाबेसेस में ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अल्टीमेटली तो चारों आपको जॉइन ही है, बट आई हैव सीन मेनी प्लेसेस वेयर दे आस्क यू इनर जॉइन इज अ सेपरेट जॉइन एंड आउटर जॉइन के ये तीन टाइप्स है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट के आगे आउटर, राइट क्या क्या आउटर और फुल क्या क्या आउटर, ऐसा स्पेसिफाई करना है। तो कुछ डेटाबेसेस क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही लेंगे लेफ्ट जॉइन, दे विल नॉट हैव द वर्ड आउटर। Few databases will take right outer join, इतना ही चेंज है, otherwise the syntax and everything will remain same। Now before going to syntax हम लोग क्या करेंगे, firstly we will try to create the tables जिसके थ्रू हम लोग joins देख सकते हैं। Once we create the table, after that we will see the syntax। Okay, so let's go to your databases once again and let me see which tables we can create।
So we can create maybe student table कर सकते हैं, and then based on student table, maybe some fees table, course table ऐसा कुछ. Okay, so then first what we have to do, you have to write the command, use which database आप you need to use test table. क्योंकि क्या होगा, हम जब नए टेबल्स को क्रिएट करते हैं, इट कैन गो टू एनी ऑफ द रैंडम डेटाबेसेस विच यू ऑलरेडी हैव. मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो मास्टर है वही जाके वो रिसाइड होता है. सो इफ यू गो टू सिस्टम डेटाबेस, वी हैव ऑप्शन मास्टर. मास्टर में आपका डेटा जा सकता है. जस्ट टू मेक श्योर यू वांट द डेटा table to be going and getting into the original database जिस पे आप काम कर रहे हो, it is always good that you use this command, use test table. हमारा test table था ना, करेक्ट? नहीं, SQL learning था क्या? एक बार बताना मुझे. आई थिंक SQL learning was the table, right? देखो एक बार. नो मैम, टेस्ट टेबल. टेस्ट था ना, हाँ ठीक है, चलो एनीवेज मेक इट टेस्ट टेबल. नो, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि फिर मेरा डिपार्टमेंट टेबल कहाँ चला गया. अच्छा ठीक है. Let's go with test table, test underscore table. डिपार्टमेंट टेबल फॉरेन की के लिए डिलीट किया था. हमने डिलीट किया था क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. अच्छा, इसको यूज करो, यूज टेस्ट टेबल, एग्जीक्यूट करो ये. अच्छा, फर्स्ट कनेक्ट द डेटाबेस. माय डेटाबेस इज नॉट कनेक्टेड, तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. आप यहाँ मेंशन कर रहे हो कि इतने डेटाबेस टेबल है, सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट क्वेरीज जो लिखूंगी वो इसी टेबल में जाने वाला है. ओके, तो जस्ट एग्जीक्यूट दिस. After executing, what you have to do is you have to start creating the first table and just make sure यहाँ पे आपका database भी correct selected है. So the way I said, एक student table बनाते हैं. So create table, table name. Table name is student. Okay. Open bracket. मैं थोड़ा fast लिख रही हूँ, आप लोग करो आराम से. Create table, table name student. Student is a table name. और जैसे हम लोग टेबल का नाम देते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, अब स्टूडेंट टेबल में आपको देखना पड़ेगा कौन सा डेटा आप लोग डाल सकते हो. सो लेट मी सी. स्टूडेंट टेबल में लेट्स से आप लोग दे दोगे स्टूडेंट नेम विच विल हैव अ varchar. देन यू विल हैव, अच्छा स्टूडेंट नेम के पहले विल ऑल्सो पुट द स्टूडेंट ID और स्टूडेंट रोल नंबर, वॉट एवर यू फील लाइक, इंटीजर कॉमा सेपरेटेड. Then student name varchar. After that, student का email ID, student underscore email. Email will also be a varchar. So when you have this combination, combined data जब आपके पास में होता है, तभी भी आप varchar ले सकते हो. Combined means alphanumerical, mix है, mathematical numbers भी है और alphabet भी है, तो आप varchar use कर सकते हो. ये मैंने email ID के लिए 100 दे दिया. And then lastly, I think कौन सा कोर्स स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है उस कोर्स का आईडी. सो दिस इज माय कोर्स अंडरस्कोर आईडी और ये इंटीजर होगा. ओके, जस्ट डू इट टिल हियर. मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, क्रिएट करो ये टेबल. ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं. इफ यू वांट टू गिव स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की, आप दे सकते हो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, बट इन केस इफ यू वांट टू इग्नोर तो भी चलेगा. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू इग्नोर चलेगा, बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज गुड कि आप एक कॉलम को प्राइमरी की बना दो. मे बी कोर्स आईडी को भी हम लोग बना सकते हैं. इफ यू वांट टू मेक इट फॉर स्टूडेंट आईडी वो भी चलेगा. फिलहाल आपको नहीं देना है, इवन दैट इज ओके. नाउ सिलेक्ट दिस, एग्जीक्यूट. सो इट सेज one table has been created. Okay, now similarly you are creating the second table. So second table हम लोग अभी कोर्स का टेबल ही बना लेंगे. It is just like it's a student table, we have a course table. So हमने student table में student का information लिखा है. Now similarly we'll create a course table. Create table, table name. The table name is COURSE, course. Bracket open, bracket close. एंड कोर्स टेबल में हम लोग सबसे पहले कोर्स आईडी को इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट इट इज द कॉमन कॉलम बिटवीन दीज टू टेबल्स, स्टूडेंट एंड कोर्स, और आप उन दोनों के बीच में कनेक्शन लगा सको विद दिस पर्टिकुलर कॉलम विच इज कोर्स आईडी. सो कोर्स आईडी विल बी इंटीजर. आफ्टर दैट कोर्स नेम दे देते हैं, विच कोर्स द स्टूडेंट हैव ऑप्टेड. सो कोर्स नेम विल बी योर varchar and this is let's say 100, comma, enter. Then we can have the important column course fee. So course underscore fee. Now fee is related to rupee and which is equal to your money currency. So हमारे पास
SQL सर्वर में मनी चलता है, ठीक है, and then you can execute this. So I'm executing it and I can see one more table has been successfully added. Just let me know once you're done with this 2 table creation. Now what we'll do, we'll start adding data to it. तो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे इस बार. सो डायरेक्टली गो टू दिस टेबल. ओके, टेस्ट टेबल पे जाना, डू अ राइट क्लिक हियर. The second last option is refresh. Sorry. So once you refresh and once you again go to test database table, under this table section आपको आपके 2 tables जो हमने अभी create किए हैं वो दिखाई देंगे, एम्प्लॉइज एंड स्टूडेंट. ओके, नाउ आई कैन सी माय डिपार्टमेंट डिटेल्स आल्सो. वो रिफ्रेश नहीं हुआ था शायद वहां पे, दैट इज व्हाई इट वाज नॉट बीइंग हाईलाइटेड. जस्ट लेट मी नो यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं या नहीं आपके टेबल्स. रेडी टेबल्स, यस, नो? यस. ठीक है, मैं इसलिए पूछूं ताकि अभी आगे के स्टेप्स हम लोग साथ में करेंगे डेटा इंसर्शन. सो एवरीबॉडी शुड बी इन सिंक विथ मी, नहीं तो फिर वो आगे पीछे हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर. ठीक है, आज फिर से 2 लोग कम है, 3 लोग कम है. ऐसे मत करो, ज्वाइन रेगुलरली. रेखा, कृष्णा, भरत. अच्छा भरत, यू वर नॉट देयर यस्टरडे, आप नहीं थे कल? नहीं था ना मैडम, प्रेजेंट था कल. अच्छा आप थे क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी. हाँ ठीक है. अखिल इज नॉट देयर, श्वेता इज नॉट देयर. ठीक है, सबके रेडी हुए? मुझे बताओ चैट बॉक्स में सब लोग बोलो यस नो, तो मुझे समझता है फिर कि मैंने आगे का कॉन्सेप्ट इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, और शुड यू नीड मोर टाइम टू डू इट. ओके, 1. अदर्स? जब तक आप बोलोगे नहीं समझेगा कैसे, मुझे बताना पड़ेगा ना. ठीक है, कृष्णा डन. और Yes, I complete. डन. ओके रेखा. आकाश? Yes, ma'am, done. ओके डन ना. हाँ, तो कैसे ना, मुझे ये चाहिए कि सबको समझ में आए, सब लोग हम लोग साथ में चले, नहीं तो आगे पीछे नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट. इवन यू आर कमिंग, इन्वेस्टिंग योर टाइम. मैं भी मॉर्निंग में आ रही हूँ बच्चों को स्कूल वूल भेज के. सो इट शुड बी विन विन फॉर बोथ ऑफ अस, राइट? ठीक है, लेट्स गो बैक नाउ. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेटा एंट्री करेंगे. अब आपको डेटा एंट्री करने की मैंने 2-3 वेज दिखाए थे. एक तो हम लोग क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम. व्हाट इज द टेबल नेम? स्टूडेंट. इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, और वो कॉलम्स पे आप वैल्यूज डालोगे. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है. सेकंड वे भी हमने देखा था, जो मैं फिर से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ. व्हेन यू डू अ राइट क्लिक ऑन एम्प्लॉइज टेबल, सॉरी कोर्स टेबल, स्टूडेंट टेबल, आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट टॉप 200 रोज. ठीक है, एडिट टॉप 200 रोज. करेक्ट. अब जिसको ये टेबल्स नहीं दिख रहे हैं कोर्स के और स्टूडेंट के, आप लोग क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन टेस्ट टेबल, डू अ राइट क्लिक, और लास्ट सेकंड ऑप्शन को बोलो रिफ्रेश. डू दिस स्टेप. और आई थिंक आशीष अभी आपने ज्वाइन किया ना, तो मैं आपको ये दोनों टेबल्स के सिंटैक्सेस सेंड करती हूँ. कहां पे? चैट बॉक्स में. एंड देन आप क्या कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट करो. आशीष आपके पास टेस्ट टेबल बना हुआ है? यस, ओके, परफेक्ट. तो ये आप क्या करो, आप जो भी आपका टेबल का नाम है, टेस्ट टेबल है या फिर आपने सीक्वल टेबल दिया होगा, पहले ये कमांड एग्जीक्यूट करो. और यूज के बाद में अगर टेस्ट टेबल ही है, एग्जैक्टली इसको पहले फायर करो. सबसे पहले आपको इसको फायर करना है. इसका अगर सिंटैक्स आता है, फिर आप क्या करो, दोनों टेबल्स जो मैंने क्रिएट टेबल डाले हैं चैट बॉक्स में, पहले इस टेबल को क्रिएट करो, उसको एग्जीक्यूट करना. एंड आफ्टर दैट उसका कंफर्मेशन आने के बाद, जैसे नीचे कंफर्मेशन आता है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, देन नेक्स्ट स्टेप यू एग्जीक्यूट दिस टेबल. दोनों साथ में मत करना. ठीक है, जस्ट डू इट एंड क्विकली लेट अस नो. ठीक है, जब तक वो एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग आगे का स्टेप करते हैं. एंड चलो, डू अ राइट क्लिक ऑन द स्टूडेंट टेबल एंड यूज द ऑप्शन एडिट टॉप 100 रोज.
और आपको ऐसा विंडो ओपन होगा। ओके, नाउ इन दिस विंडो यू जस्ट नीड टू ऐड द डेटा। तो आई थिंक हम लोग एटलीस्ट 5 रोज तो इसमें ऐड करेंगे ही, so that the data looks little clean और डेटा में आप थोड़ा joins लगा सको। So student ID, so let's say the student ID is 101, simple, student name is maybe Charlie, आपको जो नाम डालना है आप डाल दो। I always put my manager's name, it's easy to remember और जल्दी से आप insert कर सकते हो। तो 101 is student number, then student name, then what do we have here, students mail ID ना। देखो आप ऐसे पॉइंटर रखोगे तो आपको वो कॉलम का फुल नेम दिखेगा। Student email ID, तो email ID would be for me charlie@yahoo.co.in and then student course, तो कोर्स को हम लोग देंगे फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट आईडी वुड बी 102, सेकेंड नेम ऑफ द स्टूडेंट, करेक्ट, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है ना, जैसे आपका भी अभी रेडिकल में सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है, योर आईडीज आर इन अ सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है। नाउ चार्ली, देन वी हैव क्लेविन, टैब, प्रेस टैब ऑन योर कीबोर्ड, तो वो क्या होगा, आपका पॉइंटर मूव होगा, आपको बार बार ये आपके माउस पैड से नहीं करना पड़ेगा चेंज, जस्ट क्लिक ऑन डूइंग टैब टैब। द ईमेल आईडी इज क्लेविन CLEAVAN @rediffmail.com, अगेन पुट अ टैब, इसका आईडी आप डाल दो कोर्स का 20, उन्होंने कोई 20 नंबर के कोर्स के लिए एनरोल किया है। देन वी हैव 103 स्टूडेंट आईडी, student name is let's say Jolly, JOLLY, again press a tab, कैप्स लॉक में आप नाम लिखो तो बेटर है, थोड़ा जल्दी से इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है वो। स्टूडेंट ईमेल आईडी इज JOLLY Jolly@gmail.com and then tab, इसका कोर्स आईडी let's say 40, and then we have one more entry 104, student name is Reena, keep on hitting tab on your keypad, then her mail ID is reena@gmail.com, again a tab, course ID is 50, and then finally one last entry 105, the name is, let's say I put my name Ruchika, then the mail ID is Ruchika ठीक है Accenture लिख लेते Accenture.com, and then the course ID it is maybe 95। ओके, लास्ट आप जब स्टॉप करते हो ना तब आपको फिर से एक बार टैप करना है, एंड देन यू शुड नॉट गेट एनी ऑफ द रेड मार्क्स देयर। आशीष, आपके हुए टेबल्स दोनों क्रिएट? ओके ठीक है, अब आप आशीष क्या करो, ये टेस्ट टेबल पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद आप करो मेरे साथ, डू अ राइट क्लिक ऑन द टेस्ट टेबल, एंड देन सेकेंड लास्ट ऑप्शन है रिफ्रेश, सो दैट आपको जब रिफ्रेश आप कंप्लीट करते हो ये दोनों टेबल्स जो है कोर्स और स्टूडेंट के आपको यहाँ पे टेबल में विजिबल हो जाएंगे। और बाद में डू अ राइट क्लिक ऑन स्टूडेंट टेबल, कम टू द फोर्थ ऑप्शन विच सेज एडिट टॉप 200 रोज, आप क्या करो, टाइम आप थोड़ा पीछे हो तो आप 3 ही एंट्री करो, 3 स्टूडेंट की एंट्री करो, 101 स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल आईडी, कोर्स आईडी 10, 102 इंफॉर्मेशन, कोर्स आईडी 20, 103 कोर्स आईडी 40, 50, ऐसे 3 एंट्रीज करो। ओके, और जिन लोगों का हो गया है, लीव दिस टैब, कम टू द ओरिजिनल टैब एंड देन राइट द हैंडी क्वेरी। हमारा हैंडी क्वेरी कौन सा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम, सो वी आर गोइंग टू चेक हमने जो टेबल में अभी डेटा एंट्री किया है, इज द टेबल रेडी विद द डेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मीनिंग है ऑल द कॉलम्स यू वांट टू चेक। अगर आपको स्टार नहीं चाहिए, किसी एक कॉलम को पिकअप करना है, तो कॉलम का नाम दे दो, 2 कॉलम चेक करने, 2 कॉलम के बीच में कॉमा देके 2 कॉलम के नाम डालो। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट में ही डेटा डाला है तो हम लोग स्टूडेंट का डेटा चेक करेंगे, जस्ट सिलेक्ट द स्टेटमेंट,
execute. So we have the data ready. Just see, जिन लोगों ने मेरे साथ data insert किया है, do you have the table ready with the data? If you do not have, you will have to follow some other process, but you should have the data. Okay, so if you have the data ready for student, let's do a right click on the course table, edit top 200 rows from here. Now, similarly, keep adding the data. अब जब आपको कोर्स आईडी पता है कि हमने पर्पसली दोनों टेबल में इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज वी नीड टू कनेक्ट दिस बोथ द टेबल्स टुगेदर. ऑल्सो कीप दिस इन माइंड, जैसे हमने प्राइमरी की फॉरेन की में देखा था, एक टेबल होगा आपका पेरेंट, सेकेंड विल बी एक्टिंग एज योर चाइल्ड. तो जो पेरेंट टेबल में एम्प्लॉय आईडी है उसी को आप इंसर्ट कर सकते हो चाइल्ड टेबल में. करेक्ट, बिकॉज चाइल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू फॉलो द पेरेंट टेबल. तो डिपार्टमेंट में आप ऐसे कोई एम्प्लॉय आईडी को डिफाइन नहीं कर सकते जो मास्टर टेबल में है ही नहीं, जो पेरेंट टेबल में जिसका एक्सिस्टेंस ही नहीं है, जो एम्प्लॉय ज्वाइन ही नहीं किया, उसका नंबर कैसे डाल सकते हो डिपार्टमेंट टेबल में. सिमिलरली यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स ने अपने एनरोलमेंट किए हैं उसी एनरोलमेंट के कोर्स आईडी को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा. सो इफ यू वांट टू सी, सो फॉर माय सिस्टम आई डू नॉट हैव 30, मैंने पर्पसली 30 को नहीं रखा यहाँ पे. सो आई नीड टू पुट व्हाट 10, 20, 40, 50, 95. अदर देन दिस मेरे पास कोई कोर्स है ही नहीं. आई एम जस्ट ऑफरिंग दीज 5 कोर्स, 10 से लेके 20, 40, 50, 95. If I try to add anything other than your 95 or 25, वो insert नहीं करेगा. Okay, ठीक है. And let's do it one more time. So मतलब आप insert कर पाओगे, फिर आपकी वो डेटा में प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी हमने ज्वाइन कंडीशन अप्लाई नहीं किया है. But then because we are using the join condition, we are just making sure कि यहाँ पे डेटा आपका करेक्टली हो. Okay, so let's do in parallel to me. 10, the course name is, let's say, SQL Server. The course fee is maybe 2000, 20,000, then 20, then the course name is, let's say, PowerPoint, advanced PowerPoint. Course fee is 1500. Then third, we don't have 30, na? So 40, I'm putting it here. Then the course name is Power BI. Course fee is 15,000. And then finally, we have the course name as 95. और 95 में आपका कोर्स का नेम है, let's say, MSBI. And then the fees is 25,000. And put a tab one more time so that the data is clearly visible. Now, let's go back and select the data from the course table. Select star from course. To see the data for course table is also added. ठीक है, अब ये टेबल क्रिएट होने के बाद हम इसमें पर्पसली क्या करेंगे, ऐसे कोर्स आईडी को इंसर्ट करेंगे जो आपके स्टूडेंट टेबल में नहीं है. अभी तक मैंने आपको क्या इन्फॉर्म किया था कि हमारे पास वही कोर्स आईडी हमने लाइंड अप किए हैं कोर्स टेबल में जो स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल है. करेक्ट, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दो इसमें एक्स्ट्रा डेटा ऐड करेंगे. So for example, जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं बट किसी स्टूडेंट ने उसके लिए एनरोल नहीं किया है. So let's say the course number is maybe 35 and the course name is Data Analytics. Data Analytics, and the fees is 45,000. And I'm introducing one more number, that is, let's say, your 80. 80 is the course number. And then the course name is, let's say, Azure Database Combo, and the fees is 55,000. Enter. So now you're introducing 2 new courses जो किसी स्टूडेंट ने ऑप्ट नहीं किया है. अभी तक हमने क्या किया है, जो स्टूडेंट टेबल में कोर्स आईडी था उसी को हमने कोर्स डिटेल टेबल में इंसर्ट किया है. करेक्ट. नाउ कोर्स टेबल में ऐसे भी डेटा हो सकता है ना,
कि जो किसी ने एनरोल ही नहीं किया है. सो लेट्स सी हाउ जॉइंट्स विल वर्क हियर. यहाँ पे जॉइन वर्क करेगा या हमेशा सिमिलर डेटा है उसको लगेगा. सो हमने पहले कुछ डेटा पे सिमिलर रखा है और नीचे कुछ ऐसे आईडीज डाले, कोर्स आईडी, जिसके थ्रू आपका डेटा वैरी होगा. एंड इट मीन्स वी आर ऑफरिंग बट स्टूडेंट्स आर नॉट एनरोलिंग. सो जस्ट ऐड एनी 2 नंबर्स जो आपके वो ओरिजिनल लिस्ट में नहीं है of the student table, and then let's see the data once again. So now what I'm doing, I'm executing both the tables together. So if I execute both the tables, if you see my screen, I have course ID 10, 20, 40, 50, 95. Exactly वो course table में भी है. 10, 20, 40, 95 है. 50 मैंने नहीं डाला है, ठीक है. और 2 एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया, 35 and 80. Similarly, you also add 2 extra courses which we are providing, but there's no response. Just let me know once you are done with the table creation. और दोनों के डेटा को आप ऐसे एक्सट्रैक्ट करके देखो. 2 minutes, ma'am. हाँ ठीक है, चलेगा. Just make sure आप कोर्स टेबल में कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी एंट्री करते हो, so that आपको रिजल्ट थोड़ा बेटर दिखाई देगा. ठीक है, आप एंट्री करो रेखा, मैं तब तक ना सिंटैक्स लिखती हूँ. Ma'am, I done. डन क्या? ओके. Okay, so this is the syntax here. So the way we know joins can be used to combine 2 or 3 tables together. Okay, Akash. So we'll start with the basic 2 tables. कि 2 tables के बीच में आप कैसे joins लगाते हो? So very easy. Select start from table 1. So जैसे ही आप किसी भी table को पहली बार introduce करोगे, उस table को by default your Microsoft SQL server is considering as a left table. So for example, अगर मैंने यहाँ पे second table लिखा और यहाँ पे हमने change किया first table, so ठीक है. The second table will be known as the left table, first will be known as the right table. So the syntax here is select star from table to join condition. तो join condition means आपको ये decide करना पड़ेगा कि आपको inner join का result चाहिए, आपको left का चाहिए, या आपको right का चाहिए, और it is a full join. Correct? So अगर आपने suppose सिर्फ join लिख दिया और directly you have mentioned select star from table 2 join select star from table 1. आपने join का condition नहीं दिया. हमारे पास 4 conditions है, right? लेफ्ट राइट इनर फुल. बट आप जब स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ज्वाइन चलेगा? इनर ज्वाइन इज द डिफॉल्ट ज्वाइन. बट इन द केसेस व्हेन यू आर मेंशनिंग इट लेफ्ट ज्वाइन, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा? लेफ्ट ज्वाइन से रिलेटेड. लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट क्या होता है? ऑल द मैचिंग डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल एंड द कॉमन एंड द रिमेनिंग डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. ओके, तो आपने अगर ज्वाइन टाइप मेंशन नहीं किया, जिसको हम लोग कीवर्ड बोलेंगे, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो ज्वाइन के टाइप्स है, बट आप जब ये ज्वाइन वर्ड के पहले इन ज्वाइन टाइप्स को मेंशन करते हो तब हम उनको रेफर करेंगे कीवर्ड. तो आपने अगर कीवर्ड नहीं दिया, सिर्फ ज्वाइन दिया, तो आपको इनर ज्वाइन का रिजल्ट आएगा. बट आपने अगर कीवर्ड दिया राइट, लेफ्ट, फुल, नेचुरल, सेल्फ, क्रॉस ज्वाइन, तो आपको अकॉर्डिंगली वैसे रिजल्ट आएंगे.
So select star from table 2, left join, select star from table 1. अब इन दोनों का आपने ज्वाइन तो किया है, बट कौन से कॉलम पे ज्वाइन किया वो आपका कंडीशन आएगा ऑन के साथ में. तो ऑन विल अगेन बी योर कीवर्ड. तो मैं इसको कलर कोड करती हूँ. तो ऑन आपका एक कीवर्ड रहेगा. एट द सेम टाइम ज्वाइन विल बी योर कीवर्ड. तो ऑन मीन्स आपका कंडीशन लिखना पड़ेगा कि ये दोनों टेबल्स के बीच में हमें ज्वाइन लगाना है, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया. बट ज्वाइन लगाने के लिए व्हाट इज द कॉमन कॉलम, तो यहाँ पे आपको कॉमन कॉलम का नाम देना पड़ेगा. बोथ टेबल शुड बी ज्वाइन ऑन द कॉमन कॉलम. तो कॉमन कॉलम लेट्स से मेरे पास आईडी है, सो आईडी इक्वल टू आईडी ऐसे आप मेंशन करोगे. आईडी इक्वल टू आईडी. सो इसका सिंटैक्स का मीनिंग अभी ऐसे है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2, correct, and join this two table on the basis of the common column. अब वो कॉलम आईडी है, कॉमन कॉलम रिलेटेड टू मतलब कोई और सेक्शन है जिसके थ्रू आपको डेटा को रिट्राइव करना है. दैट इज हाउ द सिंटैक्स गो. अभी इसी सिंटैक्स को हम लोग रिफ्रेम करते हैं प्रैक्टिकल में. ओके, सो आई थिंक वहां पे और आपको क्लियरिटी आ जाएगा कि सिंटैक्स को कैसे आप यूज कर सकते हो. सो कम बैक टू योर डेटाबेस वंस अगेन. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आप यही रखो ऐसे, बिकॉज ये स्टेटमेंट हमको बार बार अभी यूज में आएंगे टू सी द डेटा. एंड नाउ 2 मिनट आप पहले सिंटैक्स देख लो, हाउ डू आई राइट, एंड देन आई गिव यू टाइम टू राइट द सिंटैक्स हियर. और अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इस जॉइन कंडीशंस को इंटरव्यूज के थ्रू में कंसिडर करते हैं. बिकॉज इन इंटरव्यूज लेट इट बी एनी लेवल यू आर, दे ऑलवेज हैव अ क्वेश्चंस ऑन जॉइन टाइप. और बहुत बार क्या करते हैं, व्हेन वी आल्सो टेक द इंटरव्यूज, हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को सिनारियो देते हैं, कभी कभी हम उनको रिजल्ट देते हैं कि दिस इज द रिजल्ट. अब हमें ये बताइए कि ये रिजल्ट कौन से कंडीशन से, क्या ये लेफ्ट जॉइन का रिजल्ट है, क्या ये राइट का है. सो वी विल डू इट बोथ द वेज. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल राइट द सिंटैक्स. सो इफ यू वांट टू डू इट इन पैरेलल टू मी आप करो, बट इफ यू वांट टू जस्ट पे अटेंशन इवन यू कैन डू दैट. सो द सिंटैक्स गोज लाइक select star from table 1. what is my table 1? student. आपको फिलहाल स्टार लिखना है, हम स्टार लिखेंगे, बाद में हम चेंज करेंगे स्टार को किसी कॉलम के नाम से. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. अब यहां पे आपको ज्वाइन लिखना है. ज्वाइन अगेन सिलेक्ट, सॉरी यहां पे सिलेक्ट नहीं, ज्वाइन ऑन विच टेबल, ज्वाइन ऑन योर टेबल कोर्स. ओके, बट आपको दोनों के बीच में ज्वाइन कैसे करवाना है, अगर इनर करवाना है आप मत लिखो. हाँ, आपको इनर ज्वाइन करवाना है, आप अगर इनर मेंशन भी करते हो डजंट मैटर, चलता है. बट अगर आपने नहीं मेंशन किया तो इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट वो इनर ज्वाइन का रिजल्ट देगा. सो आई थिंक फर्स्ट विल गो विथ इनर, फिर लेफ्ट देखेंगे, फिर बाकी के दोनों और देखेंगे. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इनर ज्वाइन दिस टेबल विद द कोर्स टेबल. बट अब इन दोनों को आप ज्वाइन कैसे करोगे. So to join this table, you need to have a condition. तो वो condition हम लोग लिखेंगे on के साथ में. Join हमेशा आता है ग्रे कलर में, कुछ डेटाबेसेस में इसके कलर पिंक होगा, कई ब्लैक होगा. हमारे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में ग्रे कलर्स में डिनोट होते हैं. ज्वाइन ये हमारा ऑन है, ऑन भी प्री बिल्ड फंक्शन है, दैट इज वाई द कलर इज ब्लू. अब आपको ऑन कंडीशन देनी पड़ेगी. तो हमारा कंडीशन क्या है, लेट्स गो एंड एग्जीक्यूट दिस टेबल. व्हाट इज द कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल्स, क्या कॉमन है कॉलम, कोर्स आईडी. कोर्स आईडी. ठीक है, कोर्स तो आईडी. आप यहाँ पे लिखोगे कोर्स आई अंडरस्कोर आईडी. एग्जैक्टली करेक्ट लिखना, आपने जैसे दिया है. मैंने कोर्स अंडरस्कोर आईडी लिखा है, तो कोर्स अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू कोर्स अंडरस्कोर आईडी. ठीक है, अगर किसी को ऐसे लग रहा है तो ये तो वेर जैसे ही हो गया. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इनर ज्वाइन कोर्स टेबल. क्या हम यहाँ पे वेर लिख सकते हैं ऑन की जगह, नहीं, हम लोग वेर नहीं लिख सकते. सिंटैक्स में यहाँ पे ऑन ही आता है, ऑन इज अ कीवर्ड. तो आप ऐसा बता रहे हो दो टेबल्स के बीच में आपको इनर ज्वाइन अप्लाई करना है, और इनर ज्वाइन दोनों के बीच में अप्लाई करने के लिए आपने कॉमन कॉलम को स्पेसिफाई किया है, और वो कॉमन कॉलम है आपका कोर्स आईडी. सो जस्ट डू इट क्लियर. इफ यू वांट मैं आपको ये चैट बॉक्स में भी पेस्ट करती हूँ, अगर किसी को लिखते वक्त एरर आता है यू कैन यूज दिस क्वेरी. बट अगर एरर है तो लेट मी नो, विल सी हाउ वी कैन रिजॉल्व द एरर.
ठीक है, यहां तक हो गया सबका। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बिफोर एग्जीक्यूटिंग इफ यू सी आई कैन सी 2 एरर्स हियर, आई थिंक आपको भी आए होंगे। देखो एरर पे क्लिक करो, यहाँ पे रेड मार्किंग्स पे यहाँ पे दिखा रहा है एम्बिग्यूअस कॉलम, करेक्ट। सो ये पर्पस भी हमने एरर यहाँ पे क्रिएट किया है ताकि आपको पता चले कि ये एरर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। सो ये एरर का मीनिंग ऐसा है, व्हेन वी हैव दिस रेड लाइनिंग्स वी विल नॉट एग्जीक्यूट इट। ठीक है, आपको एग्जीक्यूट करना भी है, यू कैन ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। यू आर गेटिंग द एरर दैट टू पोजीशन व्हिच सेज ambiguous column name course id, and similarly नीचे भी वही एरर है ambiguous column name course id। तो ambiguous का मतलब ये होता है that your SQL server is not able to understand कि ये course id का जो कॉलम है वो कौन से टेबल को बिलोंग करता है। क्या ये course id बिलोंग करता है स्टूडेंट टेबल को, क्या ये course id बिलोंग करता है कोर्स को, राइट। तो दोनों टेबल में आपके कोर्स id का जो नेम है एग्जैक्टली सेम है। सो द एप्लीकेशन इज गेटिंग कंफ्यूज। तो आपको इस कॉलम के आगे मेंशन करना पड़ेगा कि ये कॉलम कौन से टेबल में से आता है, और आप कैसे मेंशन करोगे उसको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ओके, तो हमारे पास दो कॉलम है, वन इज योर कोर्स अंडरस्कोर आईडी और दूसरा भी कॉलम वैसे ही है कोर्स अंडरस्कोर आईडी। अभी एम्बिग्यूअस एरर इसीलिए आ रहा है बिकॉज द टूल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से कोर्स आईडी के कॉलम को कॉल करना है। तो आपको कॉलम के आगे टेबल का नाम देना पड़ेगा। सो लेट्स से दिस इज माय कोर्स डॉट कोर्स आईडी, तो ये हो गया आपका टेबल नेम, डॉट के बाद में कॉलम नेम, तो टेबल नेम कॉलम नेम, और सेकंड आपका क्या है स्टूडेंट का। सो मैंने दे दिया स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी। समझा ये कैसे देते हैं हम लोग, टेबल नेम कॉलम नेम, टेबल नेम अगेन द कॉलम नेम। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एलाइसिस। मतलब इस पे से एक नया टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं एलाइसिस, एलियासिस, वन एंड द सेम थिंग। सो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो विच कॉलम इज कमिंग फ्रॉम विच पर्टिकुलर टेबल, करेक्ट। ओके, अब एग्जैक्टली जाके आप यहाँ पे मेंशन करो कोर्स आईडी के पहले हम लोग डालेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमारा स्टूडेंट टेबल इज द लेफ्ट टेबल, एंड हियर यू विल पुट कोर्स डॉट कोर्स आईडी। See, now the error should have gone. Now, once the error is okay, now once the code is error free, you are able to execute and you see the result and set here. आपको result आना चाहिए। Just let me know सबको result आता है कि नहीं। मैं result आपको explain करूंगी, just देखो आपको result आता है या नहीं, या किसी को blank आ रहा है। So for me the result might be 4 rows, आपका 2 ही होगा, किसी का 6 होगा, doesn't matter, क्योंकि हमने एंट्री अगर अलग अलग किया है तो रिजल्ट might vary, but you should get some kind of a result। अब जिसको रिजल्ट आया वो क्या करेगा, दे विल गो टू एक्सेल शीट, एक नए एक्सेल शीट को ओपन करो। हाउ डू यू ओपन एक्सेल शीट क्विकली, आपके कीपैड पे विंडोज को टाइप करो, विंडोज को टाइप करके राइट द वर्ड योर एक्सेल, विंडोज के बटन को टाइप करो, एक्सेल लिखो, ओपन अ न्यू एक्सेल। ओके, अब जिसका रिजल्ट आ गया आपको क्या करना है, एक्सेल शीट ओपन करने के बाद ये सारे डेटा को आपको कॉपी करना है। हाउ डू यू कॉपी द डेटा, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी, पहले सिलेक्ट ऑल करो, डू अ राइट क्लिक करो टेबल के किसी भी सेल के ऊपर। व्हेन यू डू अ राइट क्लिक करने के बाद पहले सिलेक्ट करना, और नीचे उसके ऊपर एक ऑप्शन है कॉपी विथ हेडर्स। क्यों आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट भी कॉपी करना है, साथ में उसके कॉलम के नेम्स भी कॉपी करना है। सो कॉपी विथ हेडर्स, ये होने के बाद गो बैक टू योर एक्सेल शीट, और एक्सेल शीट में डेटा को पेस्ट करो। टेक आई एम ऑल्सो टेकिंग अ न्यू शीट। हम लोग पेस्ट क्यों कर रहे हैं,
so that we can see कि हर join का result कैसे आता है. So I am just pasting the data here, Control V. देखो फिर से बताती हूँ मैं एक बार. क्या करना है आपको, किसी भी एक सेल्स पर राइट क्लिक करो एंड जस्ट डू इट सिलेक्ट ऑल. सिलेक्ट ऑल करने के बाद सेकेंड स्टेप इज मेक इट कॉपी विथ हेडर्स. तो आपका डेटा पूरा कॉपी होगा और हेडर्स भी कॉपी होंगे. एंड वंस यू आर डन विद दिस, गो टू योर एक्सेल शीट, पेस्ट द डेटा. और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप टॉपिक दे दो इनर जॉइन. आप इसको फॉर्मेटिंग मत करो, मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए थोड़ा फॉर्मेटिंग कर रही हूँ इसका. आप जस्ट कॉपी पेस्ट करो डेटा को, दैट शुड बी सफिशिएंट. सिमिलरली व्हाट आई विल डू इज, मैं ना इसके ओरिजिनल डेटा को भी कॉपी करती हूँ. हमारा जो ओरिजिनल डेटा है, कोर्स एंड देन यू हैव द स्टूडेंट. Just see if you're able to copy the entire data to Excel sheet. कोई कॉपी नहीं कर पा रहा है, let me know. See, I'm doing it here once again. Right click, select all and copy with headers. Go back to Excel sheet. यहाँ पे आप paste कर दो. Again same thing here. Select all, copy with headers. Go back to Excel sheet and paste the data. आपने ओरिजिनल टेबल अभी नहीं कॉपी किया चलेगा, मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने डेटा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है. आप सिंपली डेटा को कॉपी करो एंड राइट द नेम कि आपका ये डेटा कौन सा है. So this I'm putting as my left table. And this is the right table. करेक्ट ना? हाँ, कोर्स आपका राइट है और ये दोनों लेफ्ट है. अब मैं क्या करूंगी, चारों भी जो टेबल से आपको साथ में एक्सप्लेन करूंगी. अभी हम लोग ये डेटा अगर आपका कॉपी हो चुका है एक्सेल शीट में, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना है, गो बैक टू योर डेटाबेसेस वंस अगेन. अब आपको ये सिर्फ जॉइंट कंडीशन चेंज करना है. क्वेरी आपका एग्जैक्टली वैसे ही रहने वाला है. आप इनर की जगह आप लिखोगे लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, ठीक है, और इस डेटा को एग्जीक्यूट कर दो. एंड जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट को आपको फिर से एक्सेल शीट पे कॉपी करना है. सो जैसे ही आपके चारों रिजल्ट्स रेडी हो जाएंगे, आपने एक्सेल शीट पे कॉपी कर दिया है, लेट मी नो. फिर मैं आपको चारों रिजल्ट्स मेन टेबल के साथ में एक्सप्लेन करती हूँ दैट हाउ विल द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द जॉइंट कंडीशन विल वैरी. सो बेसिकली आपको जब किसी इंटरव्यू में सिर्फ टेबल दिया जाता है, आउटपुट का टेबल, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रिजल्ट किसका है. आपको डेफिनेटली मेन टेबल तो दिया ही जाएगा कि कौन से टेबल्स यूज करके रिजल्ट लाया है. So based on the resultant sheet, you should be able to define कि ये joint कौन सा होगा जो apply किया है. So left joint का मेरा ये result है. I am just doing a right click here, select all the data and copy with headers. रिजल्ट को कॉपी करने के बाद जस्ट मेक श्योर आप यहाँ पे joint का टाइप भी लिखते हो. Do not confuse the data. दिस इज माई लेफ्ट जॉइंट, मैंने लिखा है वहां पे लेफ्ट, हाईलाइट किया. आप अगर फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहो, इट इज ओके, हमें सिर्फ रिजल्ट चेक करना है वहां. मैम लेफ्ट जॉइन कैसे किया? नहीं,
ये लेफ्ट अब जिसका इनर और लेफ्ट हो चुका है वो राइट को चेंज करो, वो क्वेरी का वहां पे वो कीवर्ड और राइट के बाद फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो मैंने इनर को कॉपी पेस्ट किया है, लेफ्ट का किया है। नेक्स्ट आई एम जस्ट चेंजिंग इट फॉर राइट। मैम हाँ हाँ बोलो। लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन कैसे कर? क्या वापस बोलो। लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन नहीं हो रहा है मेरा। नहीं हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, मुझे एक बार मेरे को रिजल्ट कॉपी करने दो, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करने का परमिशन देती हूँ। ओके, सिलेक्ट ऑल, देन कॉपी विथ हेडर। हाँ, 2 मिनट। Then you have the right join and copy paste the right join. इसको मैंने चेंज कर दिया राइट के साथ में। तब तक आपका क्वेरी जो एरर है ना, टेबल पेस्ट करना मुझे चैट बॉक्स में देखा आप। मैं आती हूँ आपके स्क्रीन शेयर पे, तब तक पेस्ट करो, एक बार देखते हैं। एंड देन फाइनली यू हैव फुल आउटर जॉइन। रेस्ट ऑफ यू जस्ट डू दिस 4 स्टेप्स। आप चारों स्टेप्स में कीवर्ड चेंज करो। This is your full outer join. Okay, just prepare this. आप लोग इस शीट को सेव करना joins के with the name of joins, and yes, I'll stop the share. रेखा आप शेयर करो आपका स्क्रीन। बाकी लोगों का आ रहे रिजल्ट्स? हाँ, मतलब एटलीस्ट रिजल्ट्स आपको मे भी समझेगा नहीं, बट एरर तो नहीं आ रहा ना एग्जीक्यूट करते वक्त? लेफ्ट टू राइट किया आपने वो कीवर्ड को, राइट टू फुल किया। ठीक है, जस्ट लेट मी नो। ऐसा एक्सेल शीट बनाओ आप लोग। फॉर्मेटिंग में मत जाना, फॉर्मेटिंग विल टेक टाइम। सिंपली आपके टेबल्स के ऊपर मेंशन कर दो कौन सा रिजल्ट क्या स्पेसिफाई कर रहा है। चार चार ओपन किया आपने रेखा, 4 सीक्वल ओपन है आपके। ठीक है ना, इससे थोड़ा स्लो हो सकता है। हाँ अभी ठीक है, चलो बाद में क्लोज कर देना उसको। तो आपका क्या हो रहा है ये? क्वेरी तो सही है आपका, सिलेक्ट नहीं, क्लोज हो गया विंडो। किसी भी एक को ओपन करो जहां पे आपने क्वेरी लिखा है। बहुत सारे ओपन किए ना, कल से एक ही ओपन करना। हाँ, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन कोर्स ऑन, करेक्ट लिखा है आपने देखो। ठीक है, एग्जीक्यूट करो इसको, फायर करो एक बार। पहले इनर लिखो, आपने इनर एक बार इनर चलाओ, वो लेफ्ट की जगह रिप्लेस करो, इनर लिखो INNER। बाहर क्लिक करो आपके कर्सर को, ये सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन से मूव हो जाओ। उसको एक्सपांड करो। हाँ अभी, हाँ करेक्ट, राइट इनर दे। सिलेक्ट करो पूरा क्वेरी।
रिजल्ट आया, ठीक है, ये आपने कॉपी किया एक्सेल शीट में, किया है ना, चलो फाइन, चलो अभी गो टू नेक्स्ट, उसको चेंज करो। हाँ ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लिख दो आप। चेंज द कीवर्ड फ्रॉम इनर टू लेफ्ट। अच्छा ठीक है, कॉपी करो, देखते हैं आपको रिजल्ट सेम ही आता है क्या। कॉपी विथ हेडर्स, हेडर्स। ठीक है, गो बैक। इनर लेफ्ट राइट, अभी फुल के लिए करो आप। बाकी लोगों के कॉपी किया आपने रिजल्ट्स, प्रांजल, कृष्णा। Yes. हम्म Yes, ma'am. ठीक है। ओके आकाश, आपको लेफ्ट और इनर सेम ही चल रहा है क्या। आइडियली नहीं होना चाहिए सर, ठीक है चलेगा। ठीक है, आप क्या करो ना रेखा, आपके ओरिजिनल टेबल्स को ये करो, आप ओपन करना, एग्जीक्यूट करना। हाँ ये लेफ्ट है ना आपका। राइट और फुल तो ठीक दिख रहा है, इनर भी ठीक दिख रहा है। आप जाओ आपके डेटाबेस पे, वहां पे दोनों का डेटा फायर करना। वो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स। बहुत सारे डेटाबेस ओपन कर दिए आपने। अच्छा एक काम करते हैं रेखा, मैं ना क्या करती हूँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर वापस मैं आपके स्क्रीन पे आती हूँ, ठीक है चलेगा। मैं आपका स्टॉप करती हूँ प्रेजेंटेशन। ओके, आई होप सबने कॉपी किए हैं रिजल्ट्स। सो व्हेन आई गो टू माय डेटा वंस अगेन, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं ये सारे सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को साथ में कॉपी करती हूँ, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट्स वी कैन रन टुगेदर। नाउ if you just see, I have taken the result for my student table and I've taken the result for my course table. अभी हम लोग क्या देखेंगे इसमें, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट टेबल में, कोर्स का इंफॉर्मेशन है कोर्स टेबल में। नाउ व्हेन वी सी द इनर जॉइन, आई थिंक यहाँ पे लेफ्ट हुआ मेरा, अच्छा फुल हुआ ना, आई जस्ट चेंज इट टू इनर। पहले बेसिक जॉइन से स्टार्ट करेंगे। दिस इज माय इनर जॉइन। नाउ आई विल एग्जीक्यूट ऑल द 3 क्वेरीज टुगेदर टू चेक द रिजल्ट। ओके, सो पहला वाला है स्टूडेंट, सेकेंड है आपका कोर्स, एंड देन द थर्ड यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ओके, अब इनर में हम लोगों ने ये देखा था थ्योरी पार्ट में, दैट ओनली द कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स विल बी कंसिडर्ड। ओके, सो नाउ जस्ट सी व्हाट इज द कॉमन डेटा। अभी कॉमन कौन सा है, वी हैव, हम लोग कॉमन किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, कॉमन कॉलम की बेसिस पे। द कॉमन कॉलम इज विच, कोर्स आईडी, करेक्ट। तो कोर्स आईडी में कौन सा कॉलम है, कौन सा डेटा है बेसिकली जो दोनों टेबल्स में आपको दिख रहा है। 10, यू कैन सी 10, यू कैन सी 20, यू कैन सी 40। ये मेरे डेटा के लिए, आपके डेटा के लिए थोड़ा वेरी होगा अगर आपने चेंज किया है तो। सो 10, 20, 40 एंड 95 आर देयर इन बोथ द टेबल्स, इसलिए आपको रिजल्ट सेट में भी 10, 20, 40 और 95 दिख रहा है। वी डू नॉट हैव 50 इन द टेबल नंबर 2, इसलिए वो रिजल्ट में नहीं आया है। वी डू नॉट हैव 35, 80 इन द
टेबल नंबर 1, देखो टेबल नंबर 1 में 35 और 80 नहीं है, that is why it is not the part of your resultant set. Now inner join means it will always take the common column and based on the common column only the matching data will be a resultant set. So आपका matching कौन सा है, 10, 20, 40 and 95 and that is how you get the resultant set. अब चेक करो, आपका डेटा ऐसा ही है, आप दोनों ये टेबल्स को और जो थर्ड एक्चुअल क्वेरी ज्वाइन क्यों सारे को साथ में एग्जीक्यूट करो, चेक करो कौन सा कोर्स आईडी दोनों जगह आपने कॉमन रखा है और रिजल्टेंट सेट में वो ही आपको दिख रहा है या नहीं, एंड देन लेट मी नो। मिल रहा है आपको रिजल्ट सबको? समझ में आया कैसे वर्क करेगा इनर ज्वाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखा, समझा आपको? अभी आपका इनर तो आई थिंक ठीक चल रहा है, जस्ट लेट मी नो। एक आपको समझा इनर ज्वाइन? देखो मैंने सेम चीजें यहाँ पे भी इसलिए कॉपी पेस्ट करवाई आपसे क्योंकि ये आपका Yes, ma'am. समझा? ओके फाइन। देखो मैं इसका थोड़ा डेटा रिड्यूस करती हूँ साइज। तो दिस इज माय लेफ्ट टेबल जिसको हम टेबल 1 बोलते हैं, दिस इज माय राइट टेबल, टेबल 2 है, दोनों का डेटा है। अब हमारा ये कॉमन कॉलम है, मैं फिर से यहाँ पे कॉमन कॉलम को क्या करती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। सो आई एम हाईलाइटिंग दिस कॉमन कॉलम। ओके, अब इस कॉमन कॉलम में आपके कॉमन डेटा कौन सा है, 10, 20, 40 और आई थिंक 95, करेक्ट? एग्जैक्टली वही डेटा आपका रिजल्टेंट सेट में। अब रिजल्टेंट सेट में हमेशा कोर्स आईडी 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा वो, अभी फिलहाल 2 बार आ रहा है। मैं आगे के स्टेप्स में आपको और दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग एक ही को डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज योर इनर जॉइन। नाउ फॉर गोइंग आफ्टर इनर जॉइन टू लेफ्ट जॉइन, व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इस डेटा को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। आप लोग मत रिमूव करो, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। आई थिंक somebody is on unmute, please mute yourself. Control and minus. Okay, control minus. ज्यादा डिलीट हो गया, ठीक है? तो आपका इनर हो गया। अब मैं लेफ्ट ज्वाइन की बात करती हूँ। लेट्स गो बैक टू द डेटा सेट एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट लेफ्ट। यू डू इट इन पैरेलल टू मी, मे बी बिकॉज आपका रिजल्ट और मेरा थोड़ा वेरी कर सकता है, हमने एंट्री अगर अलग किया है तो। अगेन सिलेक्ट ऑल द 3 टुगेदर, ठीक है? पहले के 2 हैंडी स्टेटमेंट्स एंड द ज्वाइंट वाला स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूटेड। ओके, एग्जीक्यूट करने के बाद हमने वही रिजल्ट यहाँ पे कॉपी किया है। सो मेरे पास 3 जगह नल रिजल्ट है एंड आई थिंक आई हैव कॉपीड द सेम डेटा इनटू माय शीट एज वेल। यस, मेरे शीट में भी यहाँ पे 3 डेटा ऐसा है जो नल है। आई एम जस्ट डूइंग अ कलर कोड टू दिस डेटा। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रिजल्ट। तो लेफ्ट टेबल का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट इट विल ट्राई टू गेट द कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। तो कॉमन डेटा कौन सा है? चलो बताओ मुझे कोई तो, व्हाट इज द कॉमन डेटा? मेरे स्क्रीन पे देख के बताओ, फिर आपका डेटा चेक करेंगे। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन बोथ द टेबल्स? हम लोग कोर्स आईडी पे कॉमन देखेंगे, करेक्ट? तो कौन सा कॉमन डेटा है दोनों टेबल्स में? 10, 40. कोई तो अनम्यूट करो। 10 और क्या है? 10, 20, 40, 95. करेक्ट, 10, 20, 40। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका कॉमन है वो आपके रिजल्ट में आ गया, करेक्ट? You have the common as a part of your resultant set 10, 20, 40. But what is this join? This join is a left join. अब लेफ्ट टेबल में आपके पास 10, 20, 40 तो जा चुका है क्योंकि ये एग्जैक्टली आपके राइट टेबल से मैच हो रहा है। बट लेफ्ट टेबल बीइंग द डोमिनेटिंग टेबल, लेफ्ट और राइट में का कॉमन डेटा निकलने के बाद में आपके पास जो रिमेनिंग डेटा है लेफ्ट में वो भी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है? तो हमारे पास कौन सा रिमेनिंग है? 95 एंड 50, तो वो रिजल्टेंट सेट है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? आफ्टर दैट इफ यू सी 50 के रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा नहीं है टेबल 2 में। देखो 95 के रिलेटेड हमारे पास डेटा, अच्छा 95 भी फिर आना चाहिए ना, 10, 20, 40, 95। देखो ये भी रिजल्ट है हमारा, 10, 20, 40 और 95 दोनों कॉमन है ना, करेक्ट? ये देखो हमारे पास 10 भी है, 20 भी है, 40 भी और 95 दोनों जगह है। तो ये आपके पहले कॉमन रिजल्ट आ जाएंगे। फिर 50 ऐसा एक की है, ऐसा एक आईडी है जो दूसरे टेबल में नहीं है। 50 के अलावा भी हमारे पास 35, ये हमारे पास 35 और 80 ये राइट टेबल में बट लेफ्ट में नहीं है। बट लेफ्ट टेबल डोमिनेटिंग है तो लेफ्ट के जो बचे हैं वो आपको रिजल्ट में आएगा। तो 50 आपके पास लेफ्ट में है बट 50 का इंफॉर्मेशन आपके पास में राइट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा है बिकॉज देयर इज नथिंग एज कोर्स आईडी 50, ठीक है? तो इसलिए आपके पास ना उसका कोर्स नेम है ना उसका कोर्स फी है, दैट इज व्हाई
is null. Null means nothing. Null का मतलब 0 या 1 नहीं होता है. Null का मतलब there is nothing. There is no information available there. Correct? अभी ये समझा? Is this clear? अब आपके रिजल्टेंट सेट में चेक करो आप. तो फर्स्ट द कॉमन होने के बाद लेफ्ट टेबल में जो एक्स्ट्रा है वो इंफॉर्मेशन आएगा. आई थिंक रेखा का यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है. सो लेट मी एक्सप्लेन द रिमेनिंग टू, देन आई विल कम बैक टू योर स्क्रीन रेखा. ओके, यू ऑल गॉट द रिजल्ट. क्लियर हुआ? लेफ्ट जॉइन. आपके पास भी नल आ रहे होंगे कहीं ना कहीं तो. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. नहीं है तो लेट मी नो, हम लोग फिर से एक बार देखेंगे. आई एम रिमूविंग दिस डेटा वंस अगेन एंड लेट्स गो टू राइट. So let's go back, change this condition from left to right. So we know now right table. So change the join condition from left to right, execute all the 3 queries together so that आपके पास में base data भी दिख रहा है और resultant data भी है. Now right join again means right table will be dominating. So first query कैसे execute होगा? It will take all the common data from both the tables and after that the data which is only associated with the right table, that will be a part of your resultant set. तो आपके लेफ्ट टेबल में नल दिखना स्टार्ट होगा and that is how it is appearing here because जो राइट में है वो लेफ्ट में नहीं है. Correct? So I have couple of nulls here, but just because this data is very small, I am taking you back to the Excel sheet. And in the Excel sheet, again, if you see here, I am just highlighting this null values. This is my null values in a different color. And let me just make it a little bold. Okay. So what is the common between both? हमें already पता है 10, 20, 40, 95 is common. Okay. Apart from this 4 common, you have again the 2 which is uncommon between the both. That is your 35 and then you have your 80. So 35, 80 belong to the right table. That is why they are the part of the resultant set. And 35, 80 does not belong, I mean, it is not available in the left table. इसीलिए उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे ब्लैंक है. करेक्ट? मतलब 35 और 80 नाम के कोई 2 कोर्सेज है जो आपकी इंस्टीट्यूट ऑफर कर रही है, बट नोबडी हैव रेफर्ड इट, इसीलिए स्टूडेंट टेबल में उसका इंफॉर्मेशन इज ब्लैंक. Now next time when you start getting people enrolling for this particular course, the data will be available और आप उसके ऊपर फिर डेटा देख सकते हो. Okay, just see the data which you have. आपके डेटा में चेक करो एक बार. Okay, clear? Any questions we have? No, ma'am. No questions? ठीक है, चलो. Let's move to the last join which we have. That is the full outer join. So to get the full outer join, I'll again remove this data and let's execute this data on your SQL Server once again. So let's go back and let's make it full. So the way I said, किसी application में full join लिखना पड़ेगा, किसी application में आपको full outer join ऐसा mention करना पड़ेगा to get the result. And again, I'm executing all these 3 statements together. 2 are my statements and the third one is query. अभी left में क्या होता है? You should get all the data from both the tables. तो आपको दोनों जगह null दिखेंगे because ऐसा होगा कि कुछ data right में है, left में नहीं है and vice versa. So without doing any much botheration, आपको दोनों table का सारा data चाहिए and that is the situation where you will be using your full outer join. ठीक है, अब देखो आपके पास 50 का I think information नहीं है right table में,
That is why this area is again null. Similarly, you don't have the information of your right table in the left table, that is for the course ID 35 and 80. आप वो course publish किया है आपने, but people have not registered. That is how it is blank. So whenever you want to get data from both the table, irrespective वो common है, uncommon है, everything you want to get, and that is how your left join will be considered. Okay, just check your results, and meanwhile, now Rekha, you can share the screen. I have given you the control. Okay, so I think अभी इतना ही करते हैं. Cross join, cell join, natural join, we'll do it tomorrow. We'll again revise this 4 joins tomorrow, join concepts के साथ, फिर आगे के 3 joins करते हैं. ठीक है, full देखो, I think रेखा आपको full भी चल रहा है ना, जो मिसिंग है वो आपको दिख रहा है. ओके, अभी आप क्या करो रेखा, मुझे सिर्फ पहले के 2 टेबल्स दिखाओ आपके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स और स्टूडेंट, इन दोनों को सिलेक्ट करके रिजल्ट दिखाना मुझे. एग्जीक्यूट. ओके, सो आपने क्या किया है, 10, 30, 55, 34, 10, 30, 55, 34, 4 एग्जैक्टली आपके पास में है. 20, 24 आपने एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है, चलेगा. अब आपका कहाँ प्रॉब्लम था, इनर, एक बार इनर डालो. चलो एक बार इनर पे चेक करेंगे. जस्ट पुट इट इनर. एग्जीक्यूट ऑल 3. हाँ, थोड़ा आपके वो क्वेरी सेट को ऊपर कर लेना. हाँ, नहीं, क्या करो, ये जो जहाँ पे कोर्स आईडी दिखा है रिजल्ट में, ये थोड़ा सा ये करो ताकि, अच्छा एनीवेज आई थिंक रिजल्ट तो दिख ही रहा है नीचे. ओके, सो इनर जॉइन में आपके कौन से कॉमन है, 10, 30, 54, 34, करेक्ट. तो इनर इज वर्किंग फाइन फॉर यू. नाउ लेट्स चेंज इट टू योर लेफ्ट जॉइन. अच्छा, अभी क्या हो रहा है इसके अंदर, आपका कॉमन क्या है, 10, 30, 54, 34, ठीक है, करेक्ट आया. अच्छा, तो देखो ना रेखा, आपके लेफ्ट टेबल में 4 ही सेक्शन है, देखा आपने, इसलिए वो उतना ही आ रहा है ना. लेफ्ट में क्या है, जो 4 है वो एग्जैक्टली राइट में 4 कॉमन है. यहां तक समझा आपको, आपके लेफ्ट में जो 4 कोर्स आईडी है, एग्जैक्टली वो 4 आपके राइट टेबल में. अब आपका लेफ्ट टेबल कौन सा है, स्टूडेंट आपका लेफ्ट टेबल है, कोर्स आपका राइट टेबल है, करेक्ट. अब लेफ्ट टेबल जो स्टूडेंट है उसमें कौन से कोर्स आईडी है, 10, 30, 54 और 34, और वो एग्जैक्टली आपके राइट टेबल में भी है. देखो 10, 30, 54, 34. तो जैसे ही इस पे लाइव जोन आपने लगाया तो पहले आपके कॉमन डेटा आ गया, राइट. यू गॉट द कॉमन डेटा. कॉमन डेटा आने के बाद लेफ्ट टेबल में जो मिसिंग है वो रिजल्ट आएगा. बट लेफ्ट टेबल में ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है जो मिसिंग है, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉमन कॉलम के थ्रू इसमें रिजल्ट आ गया. अगर आपके पास सपोज लेफ्ट में ऐसा एक और कोई नंबर होता है, मे बी कोर्स आईडी नंबर 100 जो किसी ने एनरोल किया है, तो आपका 100 करके एक नया रो आता जो सिर्फ लेफ्ट में अवेलेबल है, राइट में नहीं है. समझा अभी कि क्यों आपका सेम आ रहा है लेफ्ट और राइट का रिजल्ट. समझा, वापस बताऊं, नो मैम, क्या नहीं समझा, समझ गया. समझ गया नहीं, उसको पूछ रही. रेखा समझा आपको, देखो क्या हो रहा है ना, यस मैम. जो लेफ्ट में है ना रेखा, एग्जैक्टली आपने वो राइट में डाला है. लेफ्ट में आपके पास कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है जो राइट में नहीं है, करेक्ट. तो अगर लेफ्ट में आपके पास में कोई एक्स्ट्रा नंबर होता कोर्स आईडी तो वो भी आता. अब लेफ्ट में और राइट में एग्जैक्टली सेम है, बट आप जब राइट ज्वाइन कर रहे हो ना, देखो राइट को चेंज करो, उसको रेखा लेफ्ट टू राइट करो. अब देखो राइट में आपके पास एक्स्ट्रा कोर्स आईडी है, तो आप जब राइट ज्वाइन लगाते हो कॉमन रिजल्ट तो आपका आएगा ही, साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें है राइट में वो भी आएगी. ठीक है, अब देखो आपका राइट का सारा इंफॉर्मेशन है, 10, 54, 34 और 30, ये तो कॉमन है. अब राइट में दो एक्स्ट्रा कौन सा है, 20 और 24. एग्जैक्टली, परफेक्ट. अब 20, 24 आपके उसमें लेफ्ट में नहीं है, तो वहां पे क्या आ गया, नल. नल मतलब नो इन्फॉर्मेशन. नाउ क्लियर, यस. ओके, ठीक है, परफेक्ट. चलो, सो आई टेक द कंट्रोल वंस अगेन.
एंड मैं असाइनमेंट्स अपलोड करती हूँ थोड़ी देर में. जैसे मैंने अपलोड किया मैं आपको ग्रुप में मैसेज भी करती हूँ. पिकअप द असाइनमेंट कैसे की रह रहे इनिशियली असाइनमेंट, सो दैट यू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस कि आप कर पा रहे हो. फिर असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद सबमिट इट. आई विल गिव यू 2-3 days टू डू इट. एंड देन असाइनमेंट रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, लेट मी नो, हम लोग फिर क्लास में डिस्कस करेंगे. नाउ टुडे व्हाट वी हैव, टुडे इज ट्यूसडे, करेक्ट. सो कल हम लोग लेंगे मॉर्निंग में ही. एंड द वे आई मेंशन्ड 6, 7th and 10th, ये 3 दिन मेरा ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है फुल डे. सो आई एम जस्ट प्लानिंग, मतलब ब्रेक नहीं लगना चाहिए सेशन में. नॉट अगर 1.5 घंटा नहीं बैठ सकते, बिकॉज आई नो ऑफिस के बाद में इट गेट्स हेक्टिक, एटलीस्ट 30 to 45 minutes will sit in the afternoon, sorry, in the evening. So I should be home by I think 7:30. So 8:30 to 9:30 करना, मे बी 9:15 तक ही लेंगे हम लोग. 2-3 ही टॉपिक कवर करेंगे, बट देन ब्रेक नहीं लगा सकते. एंड दिस इज द ओनली प्लान. मेरा कोई कॉर्पोरेट नहीं है इस मंथ में लाइंड अप, और जो भी है वो वीकेंड पर है. सो चलेगा ना, मतलब मुझे मैम ए टाइम फिक्स है ना? ये तो फिक्स है हमारा टाइम. करेक्ट, ये तो फिक्स ही है. नहीं वो इवनिंग का. इवनिंग का हाँ, 8:30 to 9:30 वाला फिक्स नहीं. अभी मैंने सिर्फ चेंज किया 3 सेशंस के लिए, बाकी हमारा मॉर्निंग का ही फिक्स है 7, 10 to 8:40. मेरा इवनिंग में दूसरा क्लास रहता है. ओह, क्या कर रहे हो आप, और कौन सा कोर्स कर रहे हो? इंग्लिश स्पीकिंग. अच्छा, ऐसा का क्या. अच्छा, फिर हमें भी बताना, रेखा, सीखेंगे हम आपसे, टिप्स लेंगे थोड़ा सा. नहीं, आप बहुत बेटर इंग्लिश. अरे नहीं, कोई नहीं, चलता है, ऐसे नहीं है. ऑलवेज स्कोप टू लर्न, हमेशा स्कोप होता है हर चीज लर्न करने का, है ना. तो अभी 2 वीक हुआ है इसे. अरे नहीं, हो जाते. इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं. आप डेली बोलो, नॉवेल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, सीख जाओगे. भी कैसे मेरा कॉन्वेंट अच्छा है ना, तो थोड़ा वो हो जाता है. बट कुछ नहीं, इट्स ओके. यू रीड नॉवेल्स, आपके घर में फैमिली मेंबर्स है, आपके हस्बैंड है, टॉक टू देम. गलती होगी, इट्स ओके, चलता है ना. इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बट ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट. यू आर लर्निंग इट, यू आर ट्राइंग टू बी अपस्किल योरसेल्फ. अच्छा, तो आपका ईविनिंग ऐसा है क्या? तो आपका टाइमिंग क्या है? मेरा 6:30 to 8 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ. अच्छा, बाहर जाके करते हो? हाँ, ऑफलाइन. तो ऑफलाइन है. मैं वैसे बहुत देर, मैं पुणे रहती हूँ. आई डोंट नो वेयर यू स्टे. तो मैं अभी जहाँ जाऊंगी ट्रेनिंग के लिए, वो यहाँ मेरे घर से 20 किलोमीटर है. सो आइडली 5:30 को ट्रेनिंग है, खत्म होगा 9:30 to 5:30. अदरवाइज मैं मॉर्निंग क्लास लेके जाती. सो इट्स अ फुल डे ट्रेनिंग. सो 5:30 इफ आई लीव, आई एम एक्ज्यूमिंग रेन एंड ऑल सब कंसिडर करके, बाय 7:30 आई शुड बी होम. 7:30, 8 मैक्सिमम. सो 8:30 प्लान करते हैं. ठीक है ना, 8:30 to चलेगा. 9:15 का. तो इनकेस आपको ज्वाइन हुआ लेट करने में, मुझे ग्रुप में मैसेज करो, हम लोग वेट कर लेंगे 5-10 मिनट. 8:30 चलेगा. आप आ जाओगे ना, ठीक है. तो अगर किसी को भी लेट होता है, कोई वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, ग्रुप में डाल दो, हम लोग वेट करेंगे 10 मिनट. बिकॉज आई अंडरस्टैंड, मैंने भी टाइम चेंज किया है 3 दिन के लिए. सो आई हैव टू कीप दैट थिंग कि मैं भी वेट करूंगी. बट बहुत नहीं लेंगे 10 बजे तक. मेरा सिर्फ एक ही मोमेंटम है कि ब्रेक ना लगे, दैट्स द ओनली थिंग, है ना. और एकदम लंबा ब्रेक लग जाएगा 4-5 दिन का, तो फिर वो एक वापस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में टाइम लगेगा, मुझे भी आप लोगों का. सो एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स ही करेंगे, बट देन वी विल कंटिन्यू. ठीक है. सो टुमारो लेट्स ज्वाइन अगेन 7-10. एंड कल का करते हैं. मैं इसलिए बता रही हूँ इनकेस मैं कल भूल जाऊँ बताने के लिए. और मैं फिर वो मीटिंग लिंक भी क्रिएट करने बोलती हूँ 8:30 to 9:30 का, फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे. अदरवाइज फ्रॉम ट्यूसडे विल हैव द रेगुलर सेशन मॉर्निंग का. ठीक है. Okay. Thank you so much, everybody. Have a good day. And Rekha, you enjoy your English classes. हमें भी tips देना थोड़े से. Okay. Okay, bye. Bye. Yes, save it. Save करो सारे Excel sheet save करना आपकी.